Good morning everyone. In the session of online classes, today we'll start the second chapter of class 12th, that is reproduction in flowering plant. And whenever we are using the term flowering plant, we are actually talking about the division of plant kingdom, that is angiosperm, the most advanced division of plant kingdom. Now we are talking about the reproduction. तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज द फ्लावर and we must know the basic structure of flower. So flower actually consists of few whorls, and in that the first whorl is the green color sepals and the group of sepals is called calyx. Then the second whorl come next to this sepal is the petal, which is the colored part of the flower, and this petal, group of petal is called corolla. Next is your stamen, and the group of stamen is called androecium, and this stamen is actually the male part of reproductive organ or male organ of this flower, and the innermost whorl is of female part, and this female part is called carpel or pistil, and the group, or in scientific term we are using the term gynoecium. Fine. Now all these four whorls, they are actually arranged on a swollen region, and this swollen region is called either torus, receptacle or thalamus. Fine. Now this flower, it is also known as that the flower is a, it is also called as that the flower is a modified, it is a modified shoot. Why we are calling it modified shoot? हमें पता है बेसिकली अगर हम बात करें एम्ब्रियो से, तो एम्ब्रियो से आपके दो ही पार्ट ओरिजिनेट होते हैं. वन इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रेडिकल एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म द रूट इन द फ्यूचर, and the second is plumule, which is going to form the shoot part of the plant. Okay, अब shoot में हम बात करते हैं. shoot plant के अंदर आपका आता है stem. Fine. और stem हम कंसीडर करते हैं वो पार्ट जहां पर क्या प्रेजेंट हो, नोड और इंटरनोड. और साइंटिफिकली माना जाता है कि फ्लावर में या प्लांट में कोई भी पार्ट है, वेदर इट इज अ लीफ, इट इज अ फ्लावर और अ फ्रूट और ब्रांचेस, दे ऑलवेज अराइज फ्रॉम दिस नोड. कि हमेशा नया जो पार्ट आपका ओरिजिनेट होगा शूट पर, वो किससे होगा, नोडल रीजन से होगा, बिकॉज दिस नोड कंसिस्ट ऑफ फ्यू बर्ड्स, दैट ऑक्सिलरी बर्ड्स. ये आपके बर्ड्स लीफ के लिए भी हो सकते हैं, ब्रांच के लिए भी हो सकते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर ये जो टिप है, इस टिप रीजन को अगर हम कंसिडर करें कि ये टिप रीजन कंसिडर किया जाता है, इट इज अ नोड, एंड हेयर द नोड इज बिकम फ्लैट. तो यहाँ पर नोड क्या हो गई है, फ्लैट, और यहाँ पर इसी नोडल रीजन से डिफरेंट पार्ट आपके ओरिजिनेट हो रहे हैं. सो अगर हम माने कि ये फ्लावर एक शूट था, तो दिस इज अ शूट, और इस शूट पर आपके क्या थे, नोडल रीजन. यही शूट अपर रीजन पर क्या हो गई, फ्लैट, and still it consists of certain node, and from this node different whorls of flower arises. इन्हीं नोड से आपके फ्लावर के डिफरेंट बॉल क्या होते हैं, अराइज होते हैं. दिस इज द रीजन दैट फ्लावर इज नोन एज मॉडिफाइड शूट. इसलिए फ्लावर को क्या कहा जाता है, मॉडिफाइड शूट कहा जाता है. नाउ in some flowers these petals and sepals, they are not distinguished, कि ये distinguish नहीं होते हैं, प्योरली कलर्ड भी नहीं होते, प्योरली ग्रीन भी नहीं होते. इन दैट केस वी आर कंसिडरिंग देम टेपल्स. मीन्स टेपल इज अ फ्यूजन ऑफ पेटल एंड सेपल, एंड these tepal, petal, sepal, all these whorl are actually protective in nature. ये सारी प्रोटेक्टिव नेचर की होती है. एंड petals, like we know, they help in pollination too, but these are actually non-essential whorl. Non-essential कि इनका रोल रिप्रोडक्शन में नहीं है. इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्लावर, देन ऑल्सो फ्लावर कैन रिप्रोड्यूस. फाइन. So these whorls are called
non-essential. We have only these two words. One is consist of male part and second is consist of female part, means androecium and gynoecium, and these two are known as essential part, or we can say essential wall of flower, because they are directly involved in the reproduction. Fine. Now coming to the next point, that we have talked about the flowering plant. कि flowering plant क्या है, जहां पर फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, और वो फ्लावरिंग प्लांट कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, रिप्रोडक्शन को बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है 3 पार्ट्स में. रिप्रोडक्शन में पहले आपके आते हैं प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट. प्री मतलब होता है पहले, फर्टिलाइजिंग गैमेट फ्यूजन से पहले क्या क्या इवेंट होंगे. देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, and after fertilization there comes the post fertilization event. तो रिप्रोडक्शन में बेसिकली 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट, फर्टिलाइजिंग इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. फाइन. सो first we'll talk about this pre-fertilizing event. So in this pre-fertilizing events, the main process held here is first is gamete formation. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में होगा क्या, पहले तो होगा गैमेट फॉर्मेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स बने कैसे, और फिर फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट पहुंचा कैसे, यानी कि गैमेट ट्रांसफर. तो प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे हो रहा है. फाइन. Now coming to the first point, gamete formation. Gamete formation, formation term I have told you, कहीं पर भी है formation के लिए हम क्या term यूज करते हैं, genesis. Genesis term is for formation. And यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहे gametes, तो that process of gamete formation is known as gametogenesis. तो gametogenesis is what? It is a process of formation of gamete. Now this is of 2 type. If male gamete is forming, then that process is called microsporogenesis. अगर मेल गैमेट फ्लावर में कौन सा होता है, पॉलन को कंसिडर किया जाता है मेल गैमेट, और इसी पॉलन को अर्ली स्टेजेस पर हम कहते हैं माइक्रोस्पोर. फाइन. तो हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर या पॉलन का जो फॉर्मेशन है, that process is called microsporogenesis. And simply if we split this term, genesis is what, formation, and what is forming here, microspore is forming here, which is a male gamete in flowering plant. So what is microsporogenesis? It is formation of male gamete, formation of male gamete under the bracket microspore इन फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. नाउ इफ फीमेल गैमेट इज फॉर्मिंग, then that process is called megasporogenesis. For female gamete we are simply using the term egg, or we can also use the term megaspore. ठीक है. लोअर प्लांट्स में या फिर लोअर डिविजन्स में मेगास्पोर भी टर्म यूज किया जाता था. तो अगेन इफ यू स्प्लिट द टर्म, जेनेसिस इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, मेगास्पोर, और वी कैन से फीमेल गैमेट, दैट इज एग. तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट which is egg in flowering plant is called megasporogenesis. Fine. So today we'll talk about, हमें गैमेट फॉर्मेशन में दोनों गैमेट की फॉर्मेशन कैसे हुई पढ़नी है. तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले मेल गैमेट फॉर्मेशन की, यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की. फाइन. When we are talking about microsporogenesis, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेट बनना है, तो वो मेल गैमेट बनता कहाँ पर है,
तो वो मेल गैमेट फॉर्म होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड दैट मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज स्टेमन. This is the stamen which is adhere or attached to the thalamus or torus at the base. Now this stamen, it is divided into two parts. The first one, it is long and slender. Slender मतलब होता है सीधा. So this part is long and slender, and this part is called filament. This is called filament. And this filament is attached on the anterior or at the tip to with a swollen structure. So this swollen structure at the tip of filament के टिप पर जो swollen structure है, this swollen structure is called anther. Now where this male gamete or microspore is actually forming. तो यहाँ पर एंथर वो पार्ट होता है, दिस रीजन. एंथर इज द पार्ट जहां पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा. मीन्स इनसाइड दिस एंथर व्हाट इज फॉर्मिंग एक्चुअली, एंथर के अंदर फॉर्म हो रहा है पॉलन. देन व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फिलामेंट. द रोल ऑफ दिस फिलामेंट इज टू expose the anther इन एनवायरमेंट, कि इसका काम होता है एनवायरमेंट में एंथर को एक्सपोज करना. फॉर क्यों, फॉर प्रॉपर डिस्पर्जल ऑफ पॉलन, ताकि पॉलन एटमॉस्फेयर में प्रॉपर जो है डिस्पर्स हो पाए, स्प्रेड हो पाए. ठीक है. मान लो अगर ये आपका फिलामेंट छोटा सा होता तो फ्लावर जो है एंथर भी नीचे रह जाता, और फिर यहाँ पर पॉलन जो बनते वो फ्लावर के अंदर ही रह जाते, वो एनवायरमेंट में रिलीज नहीं हो पाते. एंड इफ दे आर नॉट रिलीजिंग इन द एनवायरमेंट, अगर एनवायरमेंट में रिलीज नहीं हो रहे तो वो फीमेल पार्ट तक पहुंचने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी. तो उस तरह के फ्लावर में अगर ये फिलामेंट छोटा होगा तो उन फ्लावर्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होता है. इन योर लोअर क्लासेस, बाकी हम बात करेंगे आगे, लोअर क्लासेस में आपने बेसिक ये तो पढ़ाई हुआ है कि पॉलिनेशन क्या है, कि एंथर से पॉलन जो है वो रिलीज होकर कहाँ पर जाती है, फीमेल पार्ट में यानी स्टिग्मा पर. तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर एनवायरमेंट में एक्सपोज ना हो तो यहाँ पर पॉलन का डिस्पर्जल भी प्रॉपर नहीं हो पाता, और पॉलन फ्लावर के इनसाइड ही ट्रैप रह जाती है. तो वहां पर ज्यादातर उन फ्लावर्स में क्या प्रमोट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगा. फाइन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, एंड on the basis this stamen are of different type, they are divided into different type. First on the basis of number of theca. And what is this theca? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस स्टेमन के अंदर ये जो एंथर है, स्टेमन में जो एंथर है, इस एंथर में आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, इस एंथर में ये दो लोब्स प्रेजेंट है. सो these two are called lobes. Means if anther having two lobe, then we are calling that anther as bilobed structure. So यहाँ पर और पॉइंट लिख सकते हैं, it is swollen structure, it is bilobed, means having two lobe. Fine. ये वन लोब है, ये टू लोब है, दो लोब प्रेजेंट है. And these lobes are connected with the help of connective tissue. So here the connective tissue is present which is connecting these two lobe. और ये connective tissue जो है sterile nature का होता है, means इसका reproduction में रोल नहीं, यहाँ गैमेट फॉर्म नहीं हो रहे हैं. तो ये आपका क्या है, कनेक्टिव टिश्यू होगा. फाइन. नाउ दिस लोब इज फर्दर डिवाइडेड इन सम एंथर, मोस्ट ऑफ द एंथर में ये लोब फर्दर डिवाइडेड होती है. एंड दिस वन लोब व्हेन इट गेट डिवाइडेड लाइक दिस, सो वी आर कॉलिंग दिस थिक्का, कि ये एक लोब में लॉन्गिट्यूडनल फिशर की वजह से क्या बने, दो थिका बने. देन दैट एंथर इज कॉल्ड एज डाइथिकस. तो यहां पर क्या है,
दो लोब है, बाई लोब्ड है, एंड ईच लोब, हर लोब क्या है, हर लोब डाइथिकस है। तो यहाँ पर ये भी डाइथिकस और ये भी डाइथिकस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिका के बेसिस पर एंथर को डिवाइड किया गया। द फर्स्ट इज कॉल्ड monothecus. I have drawn here monothecus. Why we are calling it monothecus? See, यहाँ पर ये लोब भी एक है और इस लोब के अंदर कोई डिवीजन भी नहीं है, कोई पार्टीशन भी नहीं है, कोई लॉन्गिट्यूडनल फिशर भी नहीं है। तो मोनो मतलब होता है एक, और थिका जो है लोब के अंदर आपका ये जो रीजन है इसी को हम थिका बोल रहे हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ लोब। सो यहाँ पर क्योंकि एक ही आपका लोब प्रेजेंट है, देन दैट एंथर इज कॉल्ड मोनोथिकस। सो मोनोथिकस इज व्हाट? एंथर हैविंग सिंगल थिका एंड लोब। एक ही थिका और लोब प्रेजेंट है, दैट इज मोनोथिकस। And such type of anther is present in your China rose, and China rose को हम नाम लेते हैं Hibiscus rosa sinensis. So it is present in China rose, which is Hibiscus rosa sinensis. Fine. Coming to the next, आई हैव टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स के अंदर आपको जो एंथर मिलता है वो किस तरह का मिलता है? द फर्स्ट थिंग, इट इज बाइलोब, दो लोब दिख रही हैं, सो इट इज बाइलोब्ड, एंड ईच लोब हैविंग, और हर लोब में, अब इस लोब में भी क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर है जो इस लोब को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ईच लोब हैविंग टू थिका, सो दिस टू थिका इज कॉल्ड डाइथिकस। मीन्स हियर द एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथिकस in nature. So in most of the angiosperm, it is present in most of एंजियोस्पर्म। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में आपका कैसा है? बाइलोब्ड एंड डाइथिकस एंथर। फाइन। कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एंथर विद फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट, लॉन्ग सिलेंडर पार्ट, एंड दिस वेल एंड बाइलोब्ड and bilobed structure is your anther. So how this anther is attached with this filament? On that basis, this anthers are divided into further few types, like if the filament is attached to the base of anther, अगर anther के base पर filament attached है, then this is called basifixed. It is called basifixed. अब यहाँ पर ये basifixed है, ये इसका वेंट्रल सरफेस होता है, ये इसका डोर्सल सरफेस होता है। अगर आपका फिलामेंट एंथर के डोर्सल सरफेस, ये बेस था, बेस पर तो है नहीं, तो इसके डोर्सल सरफेस पर अटैच है, देन दैट फिलामेंट इज कॉल्ड डोर्सी फिक्स्ड। लाइक इन चाइना रोज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पर हमने शो किया है कि देखो ये आपका एंथर का बेस है, दिस इज द बेस। तो बेस पर अटैच नहीं है, इसके सरफेस पर अटैच है, तो ये आपका कैसा है? ये आपका डोर्सी फिक्स्ड है। तो डोर्सी फिक्स्ड जहां पर बेस पर अटैचमेंट ना हो, सरफेस पर हो। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज एडिनेट। एडिनेट इज व्हाट? जहां पर फिलामेंट लोब्स के इनसाइड तक फ्यूज होता है, मीन्स अटैचमेंट सिर्फ सरफेस पर नहीं है, बल्कि आपका जो फिलामेंट है वो एक्सटेंड होता है और एक्सटेंड होके लोब के इनसाइड तक मूव कर रहा है। तो लोब के बिटवीन, इफ द फिलामेंट इज एक्सटेंड अप टू द लोब, देन दैट एंथर इज कॉल्ड एडिनेट। एडिनेट का मतलब होता है फ्यूज। तो हियर द फिलामेंट इज फ्यूज्ड अप टू द एंथर। फाइन। नाउ द नेक्स्ट इज, here the filament is attached with the dorsal surface, but the difference is what?
यहाँ पर डोर्सल सरफेस से अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये एंथर फिलामेंट के साथ ही मूव करेगा, लाइक दिस इज एंथर, ये अटैच्ड है एंथर। तो जब फिलामेंट मूव करेगा तभी ये एंथर मूव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है। बट इन केस ऑफ दिस, यहां पर अटैचमेंट इज थ्रू कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर अटैचमेंट जो है वो बहुत लाइट होती है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एंड कनेक्टिव टिश्यू से इतनी लाइट अटैचमेंट है दैट इफ वी ब्लो एयर, कि अगर हम यहाँ पर हवा करेंगे या ब्लो करेंगे एयर को, देन दिस एंथर स्विंग ओवर दिस फिलामेंट। सो मान लो दिस इज द फिलामेंट, और अगर इस पर हवा आए तो ये आपका जो एंथर है ये इसके ऊपर पूरा स्विंग करता है लाइक दिस। तो यहाँ पर फिलामेंट मूव नहीं कर रहा है, बल्कि क्या मूव कर रहा है, एंथर स्विंग कर रहा है। तो दिस काइंड ऑफ अटैचमेंट और दिस टाइप ऑफ फिलामेंट इज versatile in nature, and this versatile, it is important, this is present in poaceae family। आपका जो wheat होता है उसके अंदर ये versatile आपको attachment दिखती है। फाइन, now on the basis of number of tube formed by the fusion of filament, this is already you have studied in your 11th class, कि आपका फिलामेंट फ्यूज होते हैं when they are fusing। फिलामेंट, अगर बहुत सारे एंथर्स हैं फ्लावर में, अगर उन सभी एंथर्स के फिलामेंट फ्यूज हो जाए, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड अडेल्फस। एडेल्फस इज अ कंडीशन ऑफ फ्यूजन ऑफ फिलामेंट, ठीक है। स्टेमन के फिलामेंट जो है वो फ्यूज हो, दैट इज एडेल्फस। फाइन, नाउ सी, these are the anther, there are so many anthers and the filament of these anther, this is the filament, these filament fused to form a common tube, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एक कॉमन ट्यूब बनाई है, इसी के लिए हम टर्म देंगे, एक ट्यूब है तो मोनो, और फिलामेंट फ्यूज होते हैं तो टर्म लगा देते हैं हम क्या, एडेल्फस। So this condition is monoadelphous and it is present in the family Malvaceae, and the example of Malvaceae is again China rose is there, hibiscus, and along with this you can also observe it in cotton plant. Fine. Coming to the next here, these anther, like anther are actually forming the tubes where the number of tube is more than one। तो यहाँ पर आपका देखो, एक तो सिंगल एंथर है, इसने अपनी ट्यूब कर रखी है, इसका एक फिलामेंट है, बाकी यहाँ पर सारे एंथर्स ने फ्यूज होकर सभी के फिलामेंट फ्यूज हुए और उन्होंने एक कॉमन ट्यूब बना ली। तो टोटल ट्यूब कितनी है फ्लावर में, वन दिस एंड वन दिस। सो इफ टू ट्यूब्स आर प्रेजेंट देन वी आर कॉलिंग इट डाई, डाई मीन्स टू, अगेन फ्यूजन है फिलामेंट का, तो इट इज एडेल्फस, diadelphous condition, and this diadelphous condition is found in Fabaceae family, or we can say Leguminosae family। Fabaceae का ही नाम क्या है, Leguminosae, Leguminosa, ये पहले नाम था, अब नाम जो है मॉडर्न न्यू जो नाम है दैट इज Fabaceae, and it includes your pea plant। फाइन, सो पाइजम सटाइवा वो आपका इसमें इंक्लूड होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, अगेन यहाँ पे देखो बहुत सारे एंथर से मिलकर ये एक ट्यूब बनाई, फिर इन एंथर से मिलकर दूसरी ट्यूब बनाई, फिर एंथर से मिलकर तीसरी ट्यूब बनाई। इफ देयर इज नंबर ऑफ ट्यूब इज मोर देन टू, देन वी आर यूजिंग पॉली टर्म। पॉली हम मेनी के लिए यूज करते हैं, एंड Adelphous again filament fused to form a single tube or to form a tube। So यहाँ पर many tubes are formed by the fusion of filaments, and this polyadelphous condition that will be found in your citrus plant। Okay, citrus family में आपको ये मिलेगी। And one more I have shown here, this condition is called syngenesis।
syngenesis condition, here what is happening, पहली आपकी एडल्फस कंडीशन थी. एडल्फस जहां पर क्या होंगे, फिलामेंट फ्यूज होते हैं एंड एंथर्स आर फ्री. Syngenesis is opposite condition. Here these anthers fuse together. So syngenesis is what? Where the anthers fused together while the filaments are free. देखो यहाँ filaments आपके free हैं. So this is called your syngenesis condition and it is present in Asteraceae family. ठीक है, जिसके अंदर आपका सनफ्लावर आता है. So this is all for today. Next we'll talk in our next class. Thank you so much.